آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں اور اسے ہم نے پریئر یعنی دعا کا نام دیا، اور ہم اسی مضمون کے زمرے میں کم از کم 3 اور عبادات کے طور پر اکٹھے ہوں گے، اور پھر خدا کے کلام کے طالب علم ہونے کے ناطے پریئر کے حوالے سے چند ایک باتیں، بنیادی باتیں سیکھنے اور پھر پورے طور پر لینے کی کوشش کریں گے۔ مہربانی سے نوٹ کر لیں کہ آنے والی 3 عبادتیں، اور بالخصوص آج کی عبادت یہ پریچنگ سیشن نہیں ہے۔ آج میں پریچ نہیں کروں گا، ٹیچ کروں گا۔ تو آنے والی 3 عبادتیں جو ہیں وہ ٹیچنگ سیشن کے طور پر ہوں، کیونکہ میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا کہ ہماری اپنی کلیسیا میں بھی 70-80% لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتی۔ ہماری اپنی کلیسیا میں 70-80% لوگ جو ہیں ان کو دعا کرنا نہیں آتی، اور کسی بھی دین کے حوالے سے، کسی بھی مذہب کے حوالے سے دعا جو ہے، نماز جو ہے وہ مرکزی درجہ رکھتی ہے۔ اب چونکہ دعا کرنا سیکھنا پڑتا ہے، میں پاسبان کے گھر میں پیدا ہوا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے دعا کرنی آتی ہے۔ میں اپنے چرچ میں سنڈے اسکول کی سطح پر، میں اپنے والد کے ساتھ مل کر یوتھ کی سطح پر دعا کرتا رہا، لیکن پھر گجروالا تھیولوجیکل سیمینری میں جانے کے بعد میں نے اپنے اساتذہ سے بہت ڈانٹ کھائی، انتہا کی ڈانٹ کھائی، اور میرے اساتذہ نے پھر مجھے یہ سکھانے کی کوشش کی کہ دعا سیکھنی پڑتی ہے، اور یہ کسی پروفیسر کا خیال نہیں، میرے کسی ٹیچر کا خیال نہیں، بلکہ میں 2 حوالے آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاس آئے، اب ذرا دھیان سے میرے ساتھ چلیے۔ خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاس آئے اور کہا کہ جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی ہے، تو ہمیں بھی دعا کرنی سکھا۔ دعا سیکھنی پڑتی ہے، ہر کوئی دعا نہیں کر سکتا، دعا سیکھنی پڑتی ہے، اور سیکھنے کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی دعا پاورفل ہو جاتی ہے۔ جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا، اور جب شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا، تو پھر جواب میں خدا یسوع مسیح نے لارڈس پریئر کا پیٹرن انہیں دے دیا اور کہا جب تم دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ، اور پھر پوری کی پوری دعائیں ربانی۔ یہ پیٹرن، یہ دعا کا نمونہ خدا نے نعمان کب دیا؟ جب شاگردوں نے درخواست کی، اور جب انہوں نے یہ مانا کہ انہیں دعا کرنی نہیں آتی۔ اب میں اور آپ تو شاگردوں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور اگر ہم نے دعا سیکھی نہیں تو پھر یہ ہمارا دعویٰ بالکل فضول اور بیکار ہے کہ ہمیں دعا کرنی آتی ہے۔ اب آ جائیں آج کے ذرا بیان پر۔ روما کے مسیحیوں کو نامہ لکھتے ہوئے مقدس پالوس روما کے مسیحیوں کو یہ کہہ رہا، جو بات میں نے اپنے چرچ کے لوگوں سے آج کہی، مقدس پالوس روما کے چرچ، روما کی کلیسیا سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہ انہیں بتا رہا ہے
चोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पर हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं करते, हमें दुआ करनी नहीं आती। जिस तौर पर हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं करते, बल्कि रूह खुद आहें भर भर कर हमारे लिए दुआ करता है, शफायत करता है, खुदा के सामने हाथ जोड़ता है। खुदाए पाक रूह मेरा और आपका दुआ के हवाले से दरमियानी बन जाता है, और वो खुदा बाप के सामने खड़ा होकर मेरी और आपकी शिफायत करता है, मेरी और आपकी दरखास्त करता है। अब जरा सीख ले दुआ का पैटर्न क्या है, दुआ में किन 3 चीजों को हमें मलहूज़े खातिर रखना। पहली बात, जब हम दुआ शुरू करते हैं तो हमने दुआ बाप से करनी है। डायरेक्टली यीशु का नाम नहीं लेना, खुदाए पाक का नाम भी आपने नहीं लेना, क्योंकि दुआ का जो पैटर्न दिया गया है उसके मुताबिक मेरे यीशु ने भी अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ करो तो कहा करो, आए हमारे बाप। और यीशु ने जब खुद दुआ की, जिसका अक्स हमें यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब में दिखाई देता है, तो वहां 7वें बाब में बार बार लफ्ज आए बाप, आए आदिल बाप, आए रहीम बाप, इस किस्म के लफ्ज जो हैं वो मेरे यीशु ने खुद अदा किए। पहली बात, जब आप दुआ करते हैं तो आपने दुआ बाप से करनी है, और दुआ का आगाज खुदा बाप के नाम से करना। कुछ लोग यीशु से दुआ शुरू करते हैं और यीशु से दुआ खत्म कर देते हैं। खुदाए पाकरू के साथ दुआ को शुरू करते हैं और पाकरू के साथ ही उसे खत्म कर देते हैं। ये गलत पैटर्न है, ये गलत है भाई। आपने दुआ बाप से करनी है, थ्रू होली स्पिरिट करनी है, खुदाए पाक रूह की तहरीक से करनी है। और जब आप खुदाए पाक रूह की तहरीक से दुआ करते हैं तो फिर ना तो आप किसी के लफ्ज चोरी करते हैं, ना आप किसी के दुआ के पैटर्न को चोरी करके अपना बना रहे होते हैं, बल्कि खुदाए पाक रूह खुद आपको लफ्ज देता है। फिर आपको लफ्ज ढूंढने नहीं पड़ते, फिर हम उस तोते की तरह नहीं हो जाते कि तोता बागे नहीं जाना, तोता बागे नहीं जाना और जानवी बाग वाले। फिर हम इस तरह से नहीं करते, फिर हमें लफ्ज ढूंढने नहीं पड़ते, बल्कि पाक रूह खुद हमें लफ्ज देता है, वो खुद हमें लफ्ज देता है। अब जब दुआ का लोगों ने रट्टा लगाया होता है तो फिर उनसे गलतियां होती हैं। जब लोग दूसरों के लफ्ज चोरी करते हैं तो उनमें कई बार किसी भी तरह की कोई सेंस जो है वो बिल्कुल नहीं होती। मिसाल के तौर पर खुदावंद फसल बख्श कि तेरा कलाम मेरे अंदर जाए, ये इस तरह से ना हो कि ये एक कान से पड़े और दूसरे से निकल जाए, इसमें कोई सेंस है? मैंने कभी ये जुमला कहा, इसमें सेंस ही नहीं। एक कान से जाए और दूसरे से बाहर। अरे भाई, खुदा का कलाम तो कहता है कि ये कलाम जब अंदर जाए तो ये तो आग लगा देता है, और ये तो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। पता नहीं किवें इथों पै के इथों निकल जाता है, मेरी समझ से तो बाहर है। खुदावंद तुझसे दुआ करते और कहते हैं कि इसकी बीमारी का बिस्तरा हटाकर शिफा का बिस्तरा अता कर, मतलब रखी बिस्तरे थे इन उठन ना दे, ये बिस्तर दे, इसमें कोई सेंस है? मैं एक जनाजे में था और मैंने एक बड़े मंजे हुए एल्डर साहब से कह दिया कि एल्डर साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
بندہ مریا گیا تے اے سب دعا کی کرن دے رٹی ہے نا دعا اپنی دعا ہے نا یہ خدا پاک دی تحریک کے نال نہیں ہے یہ اپنی دعا ہے وہ کہہ رہے ہیں خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بندے کی بیماری کا بستر ہٹا کر اسے شفا کا بستر عنایت کر میں نے ان کا بازو پکڑ کر کہا ایلڈر صاحب مر گیا جی یہ تو مر گیا جی تسی کنج دی دعا کر رہے اس عظیم کتاب میں کیا لکھا ہے مقدس پاولس کلیسیا کو نامہ لکھتا اور کہتا ہے میں عقل کے ساتھ بھی دعا کروں گا اور میں روح کے ساتھ بھی دعا کروں گا میں عقل کے ساتھ بھی گاؤں گا اور میں روح کے ساتھ بھی گاؤں گا اب آج موقع ہے خوشی کا اور آپ میرے ساتھ ہیں خوشی کا موقع ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم کسی کے گھر میں جا کر گا رہے ہیں دکھاں دے ویلے تیری ہوا سنے ہوا یہ کوئی سینس ہے کوئی عقل ہے میرا خیال ہے کہ میرا بازو پکڑ کر لوگوں کو یہ کہنا چاہیے پادری صاحب تھوڑی عقل کتے گھر چڑھ گئی تمہیں عقل نہیں وہ ہم نے خوشی کے موقع پر آپ کو بلایا آپ دکھوں کے گیت چھڑے ہوئے وہاں گیت کیا ہونا چاہیے میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے وہاں گیت کیا ہونا چاہیے خوشی خوشی مناؤ خوشی خوشی مناؤ وہاں تو خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے گیت ہونے چاہیے نا اسی لیے مقدس پاولس نے کہا میں روح کے ساتھ بھی دعا کروں گا اور میں عقل کے ساتھ بھی دعا کروں گا میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بہت سے لوگ شاید روح کے ساتھ تو دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں عقل نہیں ہوتی اور کچھ لوگ عقل سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں روح بالکل نہیں ہوتی اب سمجھ لیں سیکھ لیں سمجھ لیں دعا ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم بوٹ میں بیٹھ کر کشتی میں بیٹھ کر دونوں چپو ساتھ چلاتے ہیں اور جب تک ہم دونوں چپو ساتھ نہیں چلاتے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ایک چپو چلائیں گے کشتی وہیں گھومتی گھومتی اور گھومتی رہے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے عقل کا چپو بھی چلانا ہے اور ہمیں دعا کرتے ہوئے روح کا چپو بھی چلانا چلیں ایک چھوٹی سی بات سکھا کے پھر میں آگے نکل جاؤں اتنے سالوں سے میں عبادت کے آغاز میں آپ سے کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں خداوند کی شکر گزاری کریں مجھے سچی سے بتائیں آپ کو میری بات کی سمجھ آتی ہے آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ کو بالکل نہیں سمجھ آتی آپ شکر گزاری تھوڑی کر رہے ہوتے آپ کو پتا نہیں اس میں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے جبکہ میں اوپر سے کیا کہہ رہا ہوں آگے چل کر میں اس پر زور دوں گا اور سکھاؤں گا میں کیا کہہ رہا ہوں ایک ایک جملے میں شکر گزاری صرف کرنی ہے تو ایک جملے میں شکر گزاری کیا ہوتی ہے خداوند آج کے موسم کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خداوند اس خوبصورت جگہ کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خداوند اپنی زندگی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خداوند اپنے پاسبان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خداوند سازندوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خداوند چرچ کمیٹی کے لیے شکر گزار ہیں خداوند جونیئر چرچ کتنی شکر گزاریاں ہو گئی اور آپ یقین مانیں میرے من میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اوپر سے اناؤنس کرتا ہوں کہ ایک ایک جملے میں شکر گزاری کریں تو نیچے سے کم از کم 50 شکر گزاریاں ہونی چاہیے لیکن مجھے سچی سے بتائیں کتنی آتی ہے اب چونکہ آپ شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے اس لیے آج میں اقرار کرتا ہوں کہ پھر میں دعا کو بریک لگاتا ہوں پھر میں دعا کو وہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ آپ صحیح ٹریک پر نہیں چل رہے ہوتے آپ شکر گزاری نہیں کر رہے اور ایک اور بات سیکھ لیں یہ سیکھنے کی بات ہے جب میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے شکر گزاری کرنی ہے تو آپ نے دعا کو ختم نہیں کرنا بھائی میں نے کب کہا کہ آپ نے دعا ختم کرنی ہے اب ہم ہر شخص کی دعا پر پھر آمین 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 کہیں تو میں کب نہیں کھلتا ہوں ختم تو میں نے کرنی ہے نا بھائی دعا تو میں نے ختم کرنی ہے نا شکر گزاری
शुक्रगुजारी का मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि आप शुक्रगुजारी करें, और जब सारी की सारी शुक्रगुजारियां हो जाएंगी तो मैं फिर ये कहूँगा कि आए खुदा, इन तमाम शुक्रगुजारियों को मैं तेरे कदमों में रखता हूँ, इसे कबूल कर अपने बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आपने कभी महसूस किया कि जब आप शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और आप आमीन कहते हैं, मैंने ऊपर से कभी आमीन नहीं कहा, क्योंकि आमीन का मतलब यह होता है कि मैं आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूं, तो मैं तो हूं नहीं। थोड़ी बात सख्त है, मैं तो मुत्तफिक हूं नहीं इसलिए कि मैंने जो कुछ कहा आप वो तो कर नहीं रहे, आप तो अपनी मर्जी कर रहे हैं। ये चीजें मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने इसके लिए अपने टीचर्स के कदमों में बैठकर ये चीजें सीखी, और मैं जोर देकर ये कह रहा हूं, हमें दुआ करना सीखना है। अकल के साथ भी दुआ करनी है और रूह के साथ भी दुआ करनी है। हमारी दुआ सब्जेक्टिव होनी चाहिए भाई, सब्जेक्टिव। इस बाइबल में मैं सौों की तादाद में आपको दुआओं की मिसालें दिखा सकता हूं जो सब्जेक्टिव हैं। अगर नहमिया खुदा से दुआ कर रहा है तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक कर रहा है। हन्ना दुआ कर रही है तो सब्जेक्ट के मुताबिक कर रही है। हन्ना इधर उधर हाथ नहीं मार रही, नहमिया इधर उधर हाथ नहीं मार रहा। खुदा यीशु मसीह अगर बागे गत्समनी में दुआ कर रहा है और जिसका अक्स हमें यूहन्ना की अंजील के 17वें बाब में दिखाई देता है, तो सब्जेक्टिव दुआ है वो। सादा जुबान में मैं ये कह रहा हूं, दुआ में हमें अपने मज़मून से इधर उधर नहीं होना। आप यकीन मानिए कि मैंने सेमिनरी ट्रेनिंग के दौरान इतनी झाड़ खाई है। हज़रत इकबाल असार साहब ने कई बार मुझे झाड़ दिया, उन्होंने ऊपर से कहा कि विलियम के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। मैं बड़ी किद्दत में दुआ ले लिया। अच्छा, बहुत से लोगों की लफ्जों पर गौर करें, दुआ दुआ नहीं होती, वो दवा होती है। 4-5 गोलियां डॉक्टर वालियां पा के जिन्हों मर्जी दे चलो कोई तो लगेगी ना। दुआ और दवा में जमीन आसमान का फर्क है। और पादरी साहब ने मुझे झाड़ दिया, उन्होंने कहा भैया मैंने बेटा आप मेरी जुबान नहीं समझते। मैंने क्या कहा था, आपने क्या सुना था? आपने सिर्फ खुदा के कलाम के लिए दुआ करनी है, और वो दुआ एक जुमले पर, 2 जुमले पर, 3 जुमले पर मुश्तमिल हो सकती है। खत्म हो गई बात। होता क्या है, कई बार कलीसिया में इस किस्म का तासुर पाया जाता है कि हम जितनी ज्यादा और जितनी लंबी दुआ करेंगे लोग समझेंगे बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी दुआ करनी होती है। नोट कर लें इस बात को भाई, लंबी दुआएं हमेशा घर में की जाती हैं। चर्च में सब्जेक्टिव प्रेयर्स होती हैं जो 2-2, 3-3 जुमलों पर मबनी होनी चाहिए, ताकि बाकी वक्त में हम ज्यादा प्रस्तुत कर सकें और खुदावंद के नाम को जवाब दे सकें। क्या लिखा है? दुआ का खूबसूरत पैटर्न ये है कि जब तू अपने बाप से बात करना चाहे, अंदर कोठरी में चला जा, घंटों बात कर। जो लोग चर्च में लंबी दुआ करते हैं, मुझे शक पड़ता है कि उन्होंने घर में कभी दुआ नहीं की। चर्च में लंबी दुआ थोड़ी करते हैं भाई, सब्जेक्टिव दुआ है। कलाम के लिए दुआ है, प्रस्तिश के लिए दुआ है, शुक्रगुजारी की दुआ है, गुनाहों के इकरार की दुआ है, मुख्तसर सी दुआ है। आप लंबी दुआ अपने घर में जाकर करें। एक और बात सीख लें मेहरबानी से, और इस बात को पल्ले बांध लें, चर्च में दुआ करते हुए अपने लिए कभी नहीं दुआ करते। अपने लिए आपने दुआ अपने घर में करनी है। अपनी गाड़ी में आते हुए करें, जाते हुए करें, खाते और पीते हुए करें, लेकिन चर्च में आपने जब आपको दुआ के लिए कहा जाता है तो आप पूरी कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए उसमें मैं तो होती नहीं, उसमें तो
तो हम होता है। हम तो हम कहकर खुदा को मुखातिब कर रहे होते हैं। जब तक दुआ का पैटर्न सेट नहीं होगा, जब तक हमें दुआ करनी आएगी नहीं, तब तक हमारी दुआएं, मैं माजरत के साथ कहूंगा, इस छत से ऊपर नहीं जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करने सिखाई। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करने सिखाई और उन्होंने सीखी। इसलिए मेहरबानी से जरूर इन बातों को मलहूज़े खातिर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी के साथ। कोई 4-5 सवालात के साथ हम आज एक बेस बना लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप कितनी देर दुआ करते हैं? अपने आप को जवाब, ऊंची आवाज में नहीं, धीमी आवाज में अपने आप को जवाब दें। आप दिन में कितनी दुआ करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? बाइबल तो कुछ और कहती है। 24 घंटे में दुआ की दैनिकी की बात की जाए तो आपको एक दिन में कम से कम 2.5 घंटे दुआ करनी है। एक दिन में 2.5 घंटे कम से कम आपको दुआ करनी है। अगर कोई उससे ऊपर जाता है तो ये बड़ी बात है, लेकिन 2.5 घंटे तो आपको दुआ करनी है। अब आप कहेंगे पादरी साहब ये तो बड़ा मुश्किल है। मैं कहूंगा ये तो हलवा है, मैं अभी खिला देता हूं आपको। ये तो बड़ा ही आसान है, मुश्किल तो आपने बनाया हुआ है। नोट करेंगे, जब आप सुबह उठते हैं अपना अलार्म लगाकर उठें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब आप दुआ करते हैं, कोई शख्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने रब्बुल आलम से बात करें। मेरा तरीका कार ये है कि मैं अपने बिस्तर से पांव नीचे उस वक्त तक नहीं रखता जब तक मैं बेड पर दुआ नहीं करता। फिर उसके बाद मैं उठता हूं। आपकी मर्जी है, आधा घंटा लगा दें, आपकी मर्जी है 15 मिनट लगा दें। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि हमारी दुआ वो इंग्लिश वाली दुआ हो जो बच्चे करते हैं जिनको भूख लगी होती है। आप जितनी मर्जी लंबी दुआ कर लें, कोई बात ही नहीं है। सब्जेक्टिव होनी चाहिए बस। खाने पर दुआ हो, खाने के लिए हो, मर्जी है जितनी मर्जी आप कर लें। कुछ लोगों को चाय ठंडी करके पीने की आदत है, दुआ लंबी कर लें। कुछ मेरी तरह जो गरम गरम पीते हैं वो जरा छोटी सी दुआ कर लें। उसके बाद दोपहर का वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें फिर ऑफिसेज में, घरों में भी आपके लिए लंच टाइम है, ब्रेक टाइम है। आप चाहें तो आधे घंटे की दुआ कर सकते हैं, 15 मिनट की दुआ कर सकते हैं, 1 मिनट की दुआ कर सकते हैं। उसके बाद शाम की चाय जो है उससे पहले फिर आप दुआ कर सकते हैं। आप 10 मिनट कर लें, आप 15 मिनट कर लें, आप 1 मिनट कर लें। उसके बाद रात के खाने से पहले फिर आप दुआ कर सकते हैं। आप जितना वक्त चाहें कर लें। और सबसे बेस्ट टाइम होता है रात का टाइम, सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, किसी को कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं, उस वक्त आप घंटों दुआ में वक्त गुजार सकते हैं। मुश्किल नहीं है भाई, हमने मुश्किल बनाया। और पूछा जाए कि आप कितनी दुआ करते हैं तो सेमिनरी में एडमिशन के दौरान जब इंटरव्यू सेशन होता है वहां भी मोस्टली स्टूडेंट यही कह रहे होते हैं, पादरी साहब ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट। याद रखिएगा, दुआ खुदा से बातें करने का नाम है। और बातों का सिलसिला उस वक्त तवील होता है जब आप रिलेशन में बढ़ते हैं। जब आपका नया नया रिश्ता हुआ, और मैं आसान करके आपको समझाता हूं, जब आपने पहली बार अपनी उनको जब आपने उनको फोन किया तो कितनी देर किया? पहली बार कितनी देर किया? बताएं ना भाई, कोई बोले कितनी देर किया? सारे ने लिखा है। किस किस ने किया? कितनी देर किया आज? अच्छा, ये तो बात 5 मिनट। और उसके बाद 15 मिनट। पहला
फोन 15 मिनट, ओके। अब जरा गौर करें, और उसके बाद ओए लगे रहो मना भाई, लगे रहो। फोन गर्म हो जाता है, कान गर्म हो जाता है, लोग छोड़ते नहीं। और आप यकीन माने कि वालिदैन फिर कहते हैं वो यार असी तो रिश्ता करके फंस गए हैं, और यार शादी करो, इनकी जान छुड़ाओ। ये तो दिन रात लगे रहते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं, समझ से बाहर। अगर आप सारी की सारी बातें पहले कर लेंगे तो फिर आप बाद में क्या करेंगे? यही तो वजह है फिर बाद में आपके पास बातचीत का टाइम नहीं होता, लड़ने का चोखा टाइम। गला खत्म हो गई होंगी। तो खुदा के साथ भी मुमकिन है कि आपकी बातचीत जब शुरू हो, आप जब दुआ करना शुरू करें तो मुमकिन है 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, फिर जो आप खुदा के रिलेशन में बढ़ते चले जाएंगे, आप उसे समझते चले जाएंगे, आप उसके साथ अपनी बातों को तोड़ देते जाएंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि मेरा यीशु कितनी दुआ किया करता था? कोई रेफरेंस आपको याद है जी? अच्छा, और कोई? पहरों लिखा है, पहर, यहूदी पहर, एक पहर कम से कम 4 घंटे का होता था। और खुदावंद यीशु मसीह सारा दिन शिफा का काम और खिदमत का काम ही करता था, लेकिन इसके बावजूद भी, अब सीख लें जरा गौर से, इसके बावजूद भी वो शागिर्दों को भेजता है, वो कहता है कि तुम पार चलो, मैं तुम्हारे पास आता हूं और मैं दुआ करके आता हूं। और लिखा है वो किस वक्त उनके पास पहुंचा? ये कोई सुबह का 3 से 4 बजे का टाइम था। अब जरा सीख लें खुदावंद यीशु मसीह करता क्या था, कैसे वो बड़े बड़े मोजज़ात करता था। रात वो दुआ में वक्त गुजारता था, पावर लेता था, और उसी पावर का फिर वो इस्तेमाल सुबह नीचे गांव और शहर जाकर करता था। आपने रात को दुआ के तौर पर अपने आप को चार्ज ही नहीं किया, तो आपने सुबह क्या करना है? मेरा फोन तो सुबह 4 बजे बजना शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे के बाद इतनी दुआ की दरखास्तें होती हैं कि कई बार मैं दुआ को महदूद भी करूं तो कम से कम मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। दुआ के हवाले से मेहरबानी से नोट कर लें कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है जो बाइबल मुकद्दस में दुआ के हवाले से मौजूद है, वो पैदाइश की किताब के 4थे बाब में है। दुआ का जो पहला रिकॉर्ड है वो हमें पैदाइश की किताब के 4थे बाब में मिलता है। लिखा है कि सेत से उसका बेटा अनूस पैदा हुआ, और अनूस की पैदाइश के बाद फिर खुदा ने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की। ये दुआ के हवाले से पहला रिकॉर्ड है। अनूस के वक्त से लोगों ने फिर यहोवा का नाम लेकर दुआ करनी शुरू की, और फिर उसके बाद दुआ का सिलसिला चलता रहा। एक और बात नोट कर लें, बाइबल मुकद्दस की सबसे छोटी दुआ अंधे बर्तलमाई की दुआ है। आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, दैट्स ऑल। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई तमहीद नहीं, कोई जुग्राफिया नहीं पढ़ाया, कोई दुआ इधर से उधर नहीं हुई, सिर्फ एक जुमले में कहा आए इब्ने दाऊद मुझ गुनहगार पर रहम कर, और खुदा ने उस पर रहम कर दिया। बाइबल मुकद्दस की सबसे लंबी दुआ आप सुनकर हैरान होंगे कि मेरे यीशु ने की, और वो यूहन्ना की अंजील के 17वें बाब में है। यूहन्ना की अंजील के 17वें बाब में जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह की दर्ज है, वो वही दुआ है जो उसने गतसमनी में की, और ये दुआ बहुत लंबी दुआ है। मत्ती की अंजील में क्या लिखा है? लोग ये समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है भाई।
खुदा सुनने पर आता है तो वो एक जुमले को भी सुनकर आपको जवाब दे देता है। अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात को बयान करते हुए कितना वक्त लेते हैं। आप में से कितने हैं जो डॉक्टर माइकल नजीर अली साहब को जानते हैं? मेरे उस्ताद हैं। आप सिर्फ अपने घरों में जाकर सिर्फ गूगल कीजिएगा, सिर्फ नाम लिखिएगा और फिर देखिएगा आपके सामने क्या है। उससे बड़ा स्कॉलर पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा। डॉक्टर माइकल नजीर अली साहब, मैंने उनके कदमों में बैठकर पढ़ा। डॉक्टर माइकल नजीर अली साहब की एक खूबी है और वो खूबी बहुत कम लोगों में है। पीएचडी तो बहुत हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, कन्वर्टेड है, मलका बरतानिया के वो चैपलन रहे हैं और मलका बरतानिया हर इबादत के बाद बिशप साहब का हाथ चूमती रही है। डॉक्टर साहब की खूबी ये है कि आम पादरी जो बात 10 जुमलों में करते हैं, डॉक्टर माइकल नजीर अली एक जुमले में करते हैं। अब ये तो समझ और अकल की बात है कि आपने खुदा से अपने लिए एक ऐसी अकल और बुद्धि मांगी है, आप दुआ को खींचते हैं या आप एक जुमले में अपना मुद्दा बयान कर देते हैं। तो लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस अजीम किताब में लिखा है, वो जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। तो फिर तमहीद बांधने की तो जरूरत ही नहीं। लस्सी रहने वाली भैन दे वांगू फिर वो हंस हंस के इधर उधर दियां गल्लां, कदी उधर की गल छेड़ छड़ी है, कदी उधर की छेड़ छड़ी, ते आखिर च क्या थोड़ी जी लस्सी ते दे छड़। तू पहलों मंग लेना भाई, अपना भी टाइम बर्बाद करने नहीं, सारा भी करने नहीं। गल तेरे को है कोई नहीं सी, तू ऐ भी गल शुरू कर दी। तो बातों को खींचने से बात नहीं बनती। वैसे भी खुदा के कलाम में लिखा है, ज्यादा बोलना खता से खाली नहीं। ज्यादा बोलना जो है वो खता से खाली नहीं। इसलिए जब हम खुदा के साथ भी बात करते हैं तो हमारी बात बाइबल में लिखा है बड़ी मुख्तसर और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। और फिर से कहूंगा, ये रिलेशन की बात है, ये रिलेशन की बात है। छोटे बच्चे हैं ना यहाँ पर, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? होता क्या है, कुछ बच्चे आपसे मांगते नहीं, वो सीधा आपकी जेब में हाथ डालते हैं। और मैं कहूंगा कि हर मसीही को इस किस्म का खुदा के साथ ताल्लुक बनाना है कि वो सीधा जेब में हाथ डालते हैं। हमें इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है। ये ताल्लुक की बात है कि आप उसके पास आकर कितनी जल्दी अपना मुद्दा बयान करते हैं और कितनी जल्दी रिक्वायर्ड चीजें जो हैं वो हासिल कर लेते हैं। आगे चलेंगे। पहाड़ी बाज के तनाजुर में हमें ये सिखाया गया है कि हमारी दुआ मुख्तसर होनी चाहिए, सब्जेक्टिव होनी चाहिए, वक्त, हालात और प्रोग्राम के मुताबिक होनी चाहिए। ਹੁਣ प्रोग्राम कन्वेंशन का चलन डे है, तुसी खुले किहदे लई दुआ करन डे? प्रोग्राम म्यूजिक का चल रहा है, आप पता नहीं किसके लिए दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम जो है वो सेमिनार चल रहा है, आप पता नहीं किसके लिए दुआ कर रहे हैं। वक्त, हालात और प्रोग्राम के मुताबिक आपको दुआ करनी है। और अफेक्टिव दुआ जो है उसका पैटर्न मैंने आपको, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। एक ही है, कोठड़ी बंद करके अंदर चले जाएं और फिर खुदा के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दें। और फिर मुमकिन है कि कई बार आपको खुदा के साथ प्यार में कुश्ती भी करनी पड़े, लेकिन मेरी आप सबके लिए ये दुआ होगी कि काश आप इस स्टेज पर आ जाएं कि आप याकूब की तरह खुदा से कहें, जब तक बरकत देगा नहीं जाने नहीं दूंगा। जब तक बरकत देगा नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं। और मैं आपसे कहूंगा
प्रोग्राम को, किसी भी मजमून को लेकर खुदावंद के पास आते हैं तो मेहरबानी से अपना मुद्दा बयान करते हुए अपनी बात जब कर दें, सीख लें, उसके बाद फौरी तौर पर उठाना करें। फिर से मैंने अपने असातिज़ा से ये बात सीखी है कि जब आप दुआ करते हैं, जब आपने दुआ करने के बाद आमीन कहा तो आप मेहरबानी से इंतजार भी करें ना। मुमकिन है कि खुदा आपको रिटर्न में कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुशी तो उठ गए, हम खुदा तो पीछे बजे, हम थोड़ा इंतजार करें, थोड़ी देर बैठे रहें। मुमकिन है कि उसी वक्त खुदावंद आपको जवाब दे। वैसे नोट कर लें कि दुआ के जवाब के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हाँ की सूरत में, दूसरा तरीका है ना की सूरत में, और तीसरा तरीका है खामोशी की सूरत में। और जब खुदा खामोश होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा आपको जवाब नहीं देगा, वो नहीं दे रहा। खामोशी का मतलब ये होता है कि बेटा इंतजार कर, मैं तुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने वाला। आगे बढ़ेंगे। दुआ एक नेमत है, याद रखिएगा। और इसीलिए मैंने इस पैगाम के शुरू में कहा हर शख्स के पास ये नेमत नहीं है। नेमतें तरह तरह की हैं भाई। दुआ भी खुदा की तरफ से एक नेमत है। हर शख्स दुआ नहीं कर सकता। हर शख्स की दुआ में वो असर भी नहीं होता जो असर दुआ में होना चाहिए। दुआ एक नेमत है और हमें खुदावंद से इस नेमत की दरख्वास्त करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि आए खुदा, तू मुझे दुआ करना सिखा और दुआ के जरिए से मुझे लोगों के लिए बरकत का बायस बना। जब आप दुआ करते हैं तो मेहरबानी से जल्दी के साथ किसी के सर पर हाथ ना रखा करें, ये भी सीख लें। आप चार्ज नहीं, आप पूरे तौर पर प्रिपेयर नहीं, आप किसी पोजेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, बदरवार ट्रांसफर हो जाती है भाई। इसमें से निकाल कर दिखाऊं, ईमान की किताब जाकर पढ़िएगा कि वहां बदरवा ने उन लोगों के साथ क्या किया जो इस किस्म का काम कर रहे थे। लिखा है उनके कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए, जला दिए, और उन्होंने कहा तो देखो हम पौलुस और अपुल्लोस को तो जानते हो, तुम कौन हो, तुम कौन? हम तो उन्हें जानती हैं, बदरवा भी जानती हैं। याद रखें भाई, जब इनकाउंटर हुआ मेरे यीशु के साथ तो कई बार हुआ इब्लीस का, लेकिन ग्रासीनियों के इलाके में जब इनकाउंटर हुआ तो इब्लीस ने क्या कहा, बदरवा ने क्या कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो क्यों हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आया है। बदरूही जानती हैं भाई आपके पास पावर है या नहीं है। ऐसे ना शो मारा करो, मतलब शो मारे जाओगे। आपके पास ये इख्तियार है तो आप ये इख्तियार इस्तेमाल करें, वरना किसी के ऊपर हाथ ना रखें। कराची डायसिस में मेरे एक दोस्त हैं क्योंकि पैगाम रिकॉर्ड हो रहा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। इबादत के बाद कोई शख्स उन्हें अपने घर लेकर गया, बेटी पोजेस थी, पादरी साहब को शायद पता था या नहीं पता था, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ की, बदरू पादरी साहब में ट्रांसफर हो गया। भाई सब कहा गए ओके शरबत पी गई, वो इतना शरबत यार, इतना शरबत ना रू अफ़ज़ा, इतना पी दिया मटकों के हिसाब से पी, समझ ना आए कि भाई कहाँ जा रहे हैं। मैं भी इबादत में था, उनकी मिसेस ने मुझे बुलाया, कहा कि भाई साहब आए, पादरी साहब को परेशानी हो गया थे, शरबत पी जाते थे। मैं क्या कर ले, कर ले पी जाते। मैं आया, मैंने कहा ओहो ये तो काम ही गड़बड़ हो गया। अब मैंने वहां क्या किया, सीखे इस बात को। मैंने फौरन पादरी जॉनसन साहब को कॉल की, मैंने कहा भाई साहब प्लीज आए, क्योंकि ये इख्तियार खुदा ने आपको दिया, ये शिफा का इख्तियार, इब्लीस के साथ इनकाउंटर का ये इख्तियार खुदा ने आपको दिया हुआ है। आए, पादरी साहब आए, पादरी साहब ने आकर 2-4 मिनट में दुआ की,
وہ ساری کی ساری چیزیں چلی گئیں. پادری صاحب کو یہ کہتے ہوئے گئیں کہ ان کو بولیں کہ آئندہ ہمیں بغیر تیاری کے نہ چھیڑیں. ان کے پاس اختیار نہیں تھا, انہوں نے کیوں ہم پر ہاتھ رکھا, ہمیں چھیڑا, پھر ہم نے ان کو چھیڑا اور ایسا چھیڑا کہ شربت پلا پلا کے ان کا ستیہ ناش کیا. تو شو کے طور پر کسی پر ہاتھ, اور اس عظیم کتاب میں مقدس پالوس تو اپنے جونیئرز کو یہ کہتا ہے کہ ہاتھ رکھنے میں جلدی نہیں کرنی, اپنے بڑا محتاط رہنے, بہت محتاط رہنے, ہاتھ رکھنے میں جلدی نہیں آپ نے کرنی. اور پھر میں نے یہ سکھایا ہمیں عقل کے ساتھ بھی دعا کرنی ہے اور روح کے ساتھ بھی دعا کرنی ہے. جہاں دعا کرنی ہے وہاں دعا کرنی ہے, اور جہاں ایکشن کا ٹائم ہے وہاں ہمیں ایکشن کرنا ہے. چلیں آخری بات کہہ کر ختم کروں گا, پھر ہم یہیں سے پیغام کو اٹھائیں گے اور آگے. مجھے نہیں پتا کہ دعا آپ کے لیے کیا ہے, لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے دعا اسپیئر ویل کی طرح ہے. ان کے لیے دعا جو ہے وہ اسپیئر ویل کی طرح ہے جو پیچھے رکھا ہوا ہے. مطلب ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا ورنہ ٹھیک ہے چلتا ہے. مطلب ضرورت پڑی تو دعا کر لی, ضرورت نہیں تو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بائبل کا خدا کیا چاہتا ہے؟ بائبل کا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں, اس کے ساتھ گفتگو کریں. اور نوٹ کر لیں, ایکسچینج کے ساتھ جب تک آپ کا رابطہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ کی بات ادھر سے ادھر نہیں جاتی. اور دعا کے حوالے سے سیکھ لیں کہ خدا یسوع مسیح میرا اور آپ کا ایکسچینج ہے. بات تک میری اور آپ کی آواز اس وقت پہنچتی ہے جب ایکسچینج کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں. اور جب ایکسچینج کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ایک خاتون کی خوبصورت سی آواز آتی ہے, نان پیمنٹ کی وجہ سے آپ کا نمبر عارضی طور پر بند ہے. اس کے ساتھ رابطہ ٹھیک ہوگا, بیچ میں کوئی کسی بھی طرح کی گڑبڑ نہیں ہوگی, ڈسٹرکشن نہیں ہوگی. تو خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنا رابطہ ٹھیک رکھیں. میرے یسوع نے اس عظیم کتاب میں کہا, اب سے جو دعا میرے نام سے ہوگی اس کے باعث بیمار بچیں گے. اور کہا تم نے اب تک میرے نام سے باپ سے کچھ نہیں مانگا, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اسی لیے دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر دعا کے اختتام پر دعا یوں ہی ختم کی جاتی ہے کہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے نام سے. ہم سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے نام سے. تو پھر اب آئیے ایک پریکٹیکل کریں اور ایک دوسرے کے لیے کچھ مانگیں. کھڑے ہو جائیں گے, اپنی جگہ پر کھڑے ہو آ جائیں گے. ایک دوسرے کی طرف گھوم جائیں اور ایک دوسرے کی طرف اپنے ہاتھ کر لیں. اچھا, جس کے سامنے کوئی نہ ہو وہ میری طرف منہ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف منہ کر لیں. پریکٹیکل